Good morning, class. Today I will discuss poem. Okay. Now this first your poem is a photograph. Okay, tell me one thing I want to know. Photograph. Why you capture photograph? You are taking a lot of selfie with your camera, है ना? And after taking, we are looking over it. We are keeping it in our cell phone as a memory. If I am not wrong, we are taking photograph as a memory. We are keeping it with us as a memory. So photographs are kept by us as a memory, as a record of a past event. So here a photograph is also related to this only. In this, a photograph is also related not only to the past memory, but more one thing, that it reveals the time period, okay, of certain time period of like childhood, adulthood and last. So first I want to discuss the central idea of the poem. See beta, central idea of the poem is, the poem is written by Shirley Tolson's poem, okay, a photograph. It is actually written on her mother, tribute to her mother, to give a just honor to her mother. The poem describes 3 stages in the passage of time. In this, the poem is describing the lifetime of her mother in 3 stages actually. When she has been teenage, then grown up, and then the last. So the poem describes 3 stages in the passage of time. In the first stage, the photograph shows the poet's mother standing at the beach enjoying her holiday. Now in this, she is standing with her friends. Okay, she is enjoying the holiday with her 2 girl cousins. Now 2 cousins were there. See, cousins, why it is written as girl? Because that means 2 cousin sisters were there. Okay, to the boys also we say cousins only. Cousin is a common word. So that's why she was enjoying with her 2 cousin sisters, the holiday. She was around 12 years old at that time. At that time, her age was 12 years old. The second stage takes us 20 or 30 years way. Then, now see, after 12 years, now the time period shown is 12 plus 20. That means around figures, you can say, when she was in 30s and 40s. Okay, the mother would laugh at the way she and her cousins were dressed up for the beach holiday. देखो जो हमारी यंग की जो या आपकी जो चाइल्डहुड की पिक्स होंगी, जब आप उन्हें बड़े होके देखते हो तो आपको भी हंसी आती है ना, कि हम ऐसे भी थे. तो वैसे ही बेटा उसकी मदर को भी हंसी आ रही थी कि देखो वो और उसकी कज़न्स ने क्या ड्रेस, मतलब जो ड्रेसिंग स्टाइल और बीच में जो हॉलीडे जो सेलिब्रेट कर रहे थे, तो वो उन यादों को मेमोराइज कर रही थी, रिमेंबर कर रही थी कि हमारी कितनी प्यारी भरी यादें थी, कितनी मतलब एक अलग टाइम पीरियड होता है. देखो जैसे हम छोटे थे, जो हमारे चेंजेस आते रहते हैं बेटा नेचर में. आप जैसे ग्रोन अप होते जाते हो, आपके नेचर में चेंजेस आते रहते हैं. ओके, सो आपके नेचर में चेंजेस आते रहते हैं. यहाँ पे वो ही रेफर किया है एक ड्रेसिंग स्टाइल, और जो उनका मतलब वो अपनी मेमोरीज़ को याद कर रही थी कि वो पास्ट में कैसी थी और अब कैसी हैं, है ना. इन द थर्ड द स्टेज द पोएट रिमेंबर्स द डेड मदर विद अ हैवी हार्ट. व्हाई इट्स written as heavy heart? Because in this heart many more, बेटा जब हम देखो, we don't know how much our lifespan is. If I am not wrong, we are not knowing how much our lifespan is. Actually through this paragraph, through this poem, he want to reveal that there are many
इनकम्प्लीट आइडियाज़ इन अच विच वी वॉन्ट टू कम्प्लीट। ये हैवी हार्ट इसीलिए है, वो इनकम्प्लीट आइडियाज़ के लिए, वो मेमोरीज़ के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए जो हम अपने साथ ही अपने ले जाते हैं, जो हमारे थॉट्स हैं, हमारे आइडियाज़ हैं, हमारे थिंग्स हैं, एंड जो हमारी मेमोरीज है, डेट ऑल। सो द फोटोग्राफ रिवाइव्स अ नॉस्टैल्जिक फीलिंग इन द पोएट। बेटा नॉस्टैल्जिक, व्हाट यू मीन बाय नॉस्टैल्जिक? नॉस्टैल्जिक होता है जो आप पास्ट मेमोरीज से बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हो, डैट इट इज़, जो पास्ट मेमोरीज में आप वो मोमेंट्स साथ के साथ में रिकॉल करते हो। सो डैट इट मीन्स ये जो पोम है ना बेटा, ये रिलेटेड है, पोएट जो है डेडिकेट करना चाहता है, ट्रिब्यूट यू कैन से डेडिकेट करना चाहता है अपनी मदर को। उनकी जो पास्ट मेमोरीज़ है उसने अपने लिए इकट्ठी कर रखी है, उसकी मदर के भी पास्ट मेमोरीज़ है, और वो उसने अपने मदर के लिए एक जो फीलिंग होती है ना, ये हालांकि उसकी मदर जो है, ही हैज़ लॉस्ट हिज मदर, लेकिन ये उसकी मदर की बहुत अच्छी वाली यादें हैं जिन्हें वो संभाल के रखना चाहता है। सो देखो बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल अब ये स्टैंजा वाइज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। देखो, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स एंड शी द बिग गर्ल some 12 years or so. Now see here, देखो बेटा, कार्डबोर्ड किसे कहा गया है? जो एक पेपर बोर्ड होता है ना, जहाँ पे पहले क्या करते थे बेटा, फोटोग्राफ जो है ना, एक थोड़े से गत्ते वाले, थोड़े मोटे पेपर पे पेस्ट किया करते थे, वो गत्ता सा होता था तो उस पर पेस्टेड थी। और पैडलिंग होता है वाटर्स में वॉक करना, ठीक है, जो ज़्यादा डीप वाटर नहीं हो बल्कि जो कम गहरा हो, ठीक है, डीप वाटर नहीं, शैलो वाटर में वॉक करना, डैट इट इज़। एंड विदाउट एनी, जो आप दैट मीन बेयर फीट, दैट मीन्स विदाउट एनी स्लीपर्स, ओके। And now big girl, who was the big girl? Her mother was a big girl and her age was 12 years. Okay. तो एक ओल्ड फोटोग्राफ जो पोएट्स की मदर की जो पेस्टेड थी कार्डबोर्ड पे, पोएट उसे रिकॉल करता है उस ओल्ड मेमोरीज को जो उसकी मदर की चाइल्डहुड की है। शी इज़ 12, डेट मीन शी इज़ स्मॉल चाइल्डहुड। और द फोटोग्राफ ये डिपिक्ट करिए उसके मदर का इंजॉयबल मोमेंट्स जो उसकी मदर ने इंजॉय करे थे अपने कज़न्स के साथ में, सी बीच पे। उसके साथ उसके 2 कज़न्स थे जो उससे यंगर थे, उससे छोटे थे। दे वर वॉकिंग इन शैलो वाटर विद बेयर फीट नियर द बीच, और वो उस कम गहरे पानी में चल रही थी बीच के किनारे, समुद्र के किनारे। द मदर वॉज स्टैंडिंग इन द मिडल एंड होल्डिंग हैंड्स ऑफ हर 2 कजन्स। जो मदर थी उस टाइम पे वो मिडल में खड़ी थी और बाकी 2 कजन्स का हाथ पकड़े हुए। हु वॉज स्टैंडिंग ऑन ईच साइड, जो दोनों साइड में उसकी कजन्स खड़ी थी। द पोएट्स मदर वॉज 12 ईयर्स ओल्ड देन, उस टाइम उस पोएट्स की मदर क्या एज थी? 12 ईयर्स। It shows that the photograph was very old, but the poet has kept it carefully as it reminded her of sweet memories of her mother's childhood. हालांकि जो वो फोटोग्राफ है बेटा वो बहुत ओल्ड है, लेकिन पोएट ने उसे कितना संभाल के रखा है। सी हर मदर वॉज 12 ईयर्स, दैट शोज कि वो कितनी ओल्ड फोटोग्राफ होगी, लेकिन पोएट ने उसे बहुत ही संभाल के रखा है क्योंकि वो उसकी मदर की स्वीट मेमोरीज है, की मदर की चाइल्डहुड की। द फोटोग्राफ ऑल्सो इंडिकेट्स हाउ इंजॉयबल हर मदर्स चाइल्डहुड वॉज, और ये पोएट ये भी बताती है कि उसकी मदर का जो चाइल्डहुड था वो कितना ही इंजॉयबल रहा है ना। नाउ सी नेक्स्ट स्टैंजा है आपका। ऑल 3 स्टूड स्टिल टू स्माइल through their hair at the uncle with the camera. A sweet face my mother's dad was before I was born, and the sea which appears to have changed
less wash their terribly transient feet. Now see here. Now still होता है बेटा एक जगह खड़ी रहना without any body movement. Okay, and smile through. All of you, when you click photographs, you of course give a smile, है ना, तो ये उसको कहा गया है. और जो हेयर्स, जो उनके फ्लिक्स, जो उन्होंने बाल थोड़े से निकाले हैं और हवा के साथ जो बाल उड़ रहे हैं, उससे भी कहा गया है. टेरिबली यहाँ पे एक्सट्रीमली में है कि बहुत ज़्यादा. ट्रांसिएंट किसे कहा गया है बेटा? जो टेम्परेरी, डेट मीन्स जैसे आप बेयर फिट क्या फुल डे तो नहीं रहते ना, तो थोड़े टाइम तक, कुछ टाइम तक. ओके, जो बहुत थोड़ा टाइम हो उसको बोला गया है. तो देखो, द फोटोग्राफ शोज दैट ऑल थ्री गर्ल्स, द पोएट्स मदर एंड हर टू कजन्स, स्टूड स्टिल एंड स्माइल्ड एट द कैमरा व्हेन देयर अंकल क्लिक्ड देयर फोटोग्राफ एट द सी बीच. तो जब फोटोग्राफ ये दिखाती है बेटा कि ये जो थ्री गर्ल्स हैं, पोएट मदर एंड द टू कजन्स, दे वर स्टैंडिंग एंड दे वर स्माइलिंग एट द कैमरा. जब अंकल ने क्लिक की थी उनकी फोटोग्राफ सी बीच पे, एज द वेदर वॉज विंडी. हाउ यू कैन इमेजिन द वेदर वॉज विंडी? बिकॉज द हेयर्स वर फ्लाइंग. तो जो हवा थी, वो हवा चल रही थी, सो उनके जो हेयर्स थे बेटा वो फ्लाई कर रहे थे जब उनके फेसेस स्माइली थे. द एक्सप्रेशन ऑन द फेसेस ऑफ द पोएट्स मदर एंड द कजन्स वॉज डैट ऑफ हैप्पीनेस एंड एन्जॉयमेंट. तो उस टाइम पे जो टाइम पीरियड था, एट दैट टाइम हर मदर वॉज वेरी मच हैप्पी एंड एक्साइटेड ऑल्सो. व्हेन वी आर ट्रैवलिंग, वी आर वेरी मच एक्साइटेड. जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, और ख़ासकर अपनी फ्रेंड्स, अपने कज़न्स जो हमारे इक्वल पेयर ग्रुप के हैं, तो हमें ज़्यादा वहाँ पे मज़ा आता है, इन्जॉय ज़्यादा होता है. तो वैसे ही दे वर वेरी मच हैप्पी एंड द मदर वॉज लुकिंग वेरी प्रिटी एट दैट टाइम एंड द फोटोग्राफ वॉज टेकन अ लॉन्ग टाइम एगो. फर्स्ट, इट्स अ मदर चाइल्डहुड, दैट मीन्स द फोटोग्राफ इज़ वेरी ओल्ड. Okay, and at that time all the three, they were enjoying a lot. Her mother was very much beautiful and she was very much happy. Everything has changed since then her mother grew up. देखो बेटा, एज टाइम पीरियड जैसे ग्रो होता है, हमारे चेंजेस आते रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लाइक नाउ यू आर इन 11th, यू माइट बी इमेजिनिंग कि आफ्टर 12th जब हम कॉलेज में जाएंगे, ये सारी डिफरेंट, एक हमारा एक ड्रीम वर्ल्ड होता है, फैंटेसी लैंड होता है जिसे हम इमेजिन करते हैं, है ना. लेकिन जब हम वो फेस करते हैं कॉलेज, तो एक डिफरेंट आउटलुक होता है. तो जैसे एज पर एज, जैसे हम ग्रो होते जाते हैं, तो हम में भी चेंजेस आते हैं, क्योंकि हम रियलिटी वर्ल्ड से जो है ना, रियलिटी वर्ल्ड से फेस करते जाते हैं. तो वही दिख रहा है यहाँ पे कि जब उसकी मदर छोटी थी, चाइल्डहुड में थी, उसके कज़न्स के साथ एंजॉय कर रही थी, अब वो मदर बन चुकी है. तो डे बाय डे उनकी जो डिज़ायर्स एंड एवरीथिंग हैज चेंज्ड, है ना. एवरीथिंग वॉज चेंज सिंस देन हर मदर ग्रू अप. जैसे उसकी मदर बड़ी हो गई, बहुत चीज़ें बदल गई. नाउ शी वॉज डेड एंड द पोएट वॉज रिवाइविंग हर मेमोरीज. अब तो वो नहीं है, लेकिन पोएट जो है वो अपनी जो मेमोरीज़ है, अपनी मेमोरीज़ अपनी मदर की, जो वो याद करता है अपनी मदर को. वो कैसे करता है? उसकी जो फोटोग्राफ्स देख के. द ओनली थिंग डेट वॉज रिमेन्ड अनचेंज्ड इन द सी विच वॉज वॉशिंग द फीट ऑफ ऑल द थ्री गर्ल्स. जो नहीं चेंज हुआ, देखो उसकी मदर भी ग्रो अप हो गई, ठीक है, तो वो टाइम पीरियड भी चला गया, और ग्रो अप होके उसकी मदर भी, यू कैन से नाउ शी इज़ नो मोर. और लेकिन जो नहीं चेंज हुआ, वो आज भी ये नहीं हुआ कि जो पोएट्स, जो फीट वॉश करना, जो थ्री गर्ल्स के जो सीन ने जो फीट वॉश किए थे, ये चेंज नहीं हुआ. द मेंशन ऑफ द वर्ड ट्रांसिएट इंडिकेट्स द एवर चेंजिंग लाइफ्स ऑफ ह्यूमन बींग्स. एक्चुअली बेटा, इसमें ट्रांसिएट ये कह रहा है कि हर एक चीज़ जो हमें मिलती है वो एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए है, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए नहीं है. सी देयर आर चेंजेस. जैसे आप स्मॉल होते हो, आपका सिर्फ एक जो वर्ल्ड होता है वो आपके पेरेंट्स के सराउंड होता है, पेरेंट्स और या एल्डर ब्रदर.
लेकिन जब आप स्कूल में जाते हो तो आपका वर्ल्ड आपके फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स के साथ भी शेयर होता है, ठीक है। फिर जब आप आउटसाइड बाहर खेलने जाते हो तो और आपके कोलीग्स बनते हैं, तो कितने सारे हमारे नेचर में भी चेंजेस आती रहती हैं। तो ये वो चीज़ रिफ़र कर रहा है कि ह्यूमन बीइंग का नेचर है वो एज़ पर टाइम जो है चेंज होता रहता है, और ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ्स में भी चेंजेस आते हैं। कि देखो, जब उसकी मदर जब यंग थी 12 ईयर्स की, वो सिर्फ कज़न्स के साथ में सिर्फ एंजॉय कर रही थी। एट दैट टाइम वो सिर्फ उनका ही टाइम पीरियड था। लेकिन जैसे वो ग्रो हुई, उनके मैरिज हो गई, उनका टाइम पीरियड जो है, जो उनके टाइम पीरियड उनके किड्स का हो गया है ना। अब वो किड्स की इंजॉयमेंट से सोचने लगी। तो ये सारे काफ़ी सारे चेंजेस आ जाते हैं। जो ट्रांसिएंट है वो टेम्परेरी कहा गया है कि ह्यूमन बीइंग्स की जो लाइफ होती है ना, वो एक शॉर्ट टाइम पीरियड होती है कि जैसे आज ये है लेकिन कल कुछ और नया चेंज मिलेगा। चेंजिंग जो है ये रिवील कर रहा है। एज वेल एज शॉर्टनेस ऑफ देयर स्टे इन दिस वर्ल्ड, और जो वर्ल्ड में है वो भी बहुत शॉर्ट लाइफ टाइम पीरियड है, शॉर्ट टाइम पीरियड है जिसमें वो जीते हैं, इन कॉन्ट्रास्ट टू द एटर्नलिटी ऑफ नेचर। लेकिन नेचर एज इट इज़ रहता है, नेचर में कोई चेंज नहीं रहता। एटर्निटी किसे कहा है? जो अमर हो, जो कभी ख़त्म ही नहीं हुआ हो। जैसे सी का है, सी कभी ख़त्म नहीं हुआ। जो समुद्र की जो लहरें आ रही हैं जा रही हैं वो कभी ख़त्म नहीं हुई, जो इस पोम के थ्रू आपको बताना चाहते हैं। तो नेचर जो है वो नॉन एंडिंग है, नॉन लिविंग है, जिसका कोई एंड नहीं है, वो एज इट इज़ रहता है। द गर्ल्स लाइफ चेंज ड्रास्टिकली ड्यूरिंग दिस पीरियड बट द सी हैज़ नॉट चेंज। जो गर्ल की लाइफ में तो बहुत सारे चेंजेस आ गए, जो उसकी मदर की लाइफ में कितनी सारी चेंजेस आ गए। वो ग्रो अप हो गए, फिर उनकी मैरिज हो गई, फिर उसके बाद उनके सन हो गए। ओके, आफ्टर डेट वो टाइम पीरियड खो गया जब वो खुद ही अपने टाइम पीरियड पे हंस रही थी कि वो कभी ऐसे भी थी। तो देखो उनमें कितने सारे चेंजेस आ गए, लेकिन सी में कोई चेंज नहीं आया। सी आज भी वैसा का वैसा है। द स्टेंजा ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्स द ट्रांजिएंट नेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो ये टेम्परेरी नेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स का रिवील कर रहा है कि हमारा नेचर कितना चेंज होता जाता है। नाउ सम 20-30 years later she had laughed at the snapshot. See Betty and Dolly, she had said, and look how they dressed up for the beach, dressed us for the beach. The sea holiday was her past, mine is her laughter. Both were with the labored ease of loss. तो देखो, जो उस राइटर की मदर की हंसी थी वो उसके लिए थी, बाकी जो समुद्र की यादें थी वो तो उसकी मदर के लिए थी। स्नैपशॉट कहा गया है फोटोग्राफ को। ड्रेस्ड, जो उन्होंने क्लोथ्स पहने थे उसे कहा गया है वरे, आप कह सकते हो। डिस्कस्टिंग किसे कहा है? जिसे आप एक मजाक बना रहे हो कि देखो कितना ये कैसा लम्हा था, कितना अजीब सा, कितना मजाक वाला था ना। लेबर, जो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क के बाद में आपने कुछ मिला हो, ईज़ और बहुत आसानी से। ओके, तो देखो इवन 20-30 years लेटर द मदर वुड लुक एट द फोटोग्राफ। अब जब 20-30 years की जब वो इस लाइन में हो गई थी, तो जब वो फोटोग्राफ को देख रही थी तो वो अपनी पास्ट मेमोरीज पे हंसने लगी। लाफ नॉस्टैल्जिकली, डेट मीन्स पास्ट मेमोरीज पे हंसने लगी कि वो पास्ट यादें देखो। वो अपने हैप्पी मेमोरीज याद करी थी, वो अपने बीते हुए पल की जो पास्ट मेमोरीज है, जो खुशी वाली है, वो याद करी थी। मदर वुड लुक एट द फोटोग्राफ एंड कमेंट ऑन हर ड्रेसेस वोन बाय द कजन्स डॉली एंड बैटी एंड हर सेल्फ। तो वो अपनी फोटोग्राफ पे, वो तीनों की ड्रेसेस पे भी हंस रही थी कि देखो हमने कैसी ड्रेसेस पहनी थी, हम कैसे फोटोग्राफ करा रहे थे। तो इन सब चीज़ों पे भी वो हंस रही थी। सी हॉलीडे वॉज हर मदर्स पास्ट एंड हर मदर्स लाफ्टर हैज़ बिकम अ थिंग ऑफ द पास्ट फॉर द पोएट एज अ मदर वॉज नाउ डेड। जो सी हॉलीडे है उसकी मदर का पास्ट है, और वो जो फोटोग्राफ है वो पोएट
राइटर के लिए पास्ट है। सो बेटा ये एक्चुअली ये दिखाया है कि जो वो मेमोरी थी वो उसकी मदर का पास थी, और ये जो पिक है ये एक राइटर के लिए पास है, बिकॉज ही हैज़ लॉस्ट हिज मदर। वो अपनी मदर को जो है खो चुका है, और वो सिर्फ यादें हैं उसकी मदर की। ठीक है, वो हालांकि वो हंस रही है, उसकी मदर हंस रही है अपनी फोटोग्राफ पे। वो जो सी हॉलीडे जो उन्होंने बिताया था उस फोटोग्राफ पे वो हंस रही हैं कि देखो कितना कुछ है ना। द पोएट स्टिल मेम्बर्स हाउ हर मदर, लेकिन उसका पोएट आज भी उस मेमोरी को याद कर रहा था कि उसकी मदर कैसे हंस रही थी उस फोटोग्राफ को देख के। तो बेटा देखो पास्ट क्या हुई, उसकी मदर के लिए वो फोटोग्राफ पास्ट हो गई। ठीक है, और जो फोटोग्राफ को देख के उसकी जो मदर हंस रही थी वो पल एक राइटर के लिए पास्ट फीलिंग हो गया, और यादें हो गई। उसकी मदर के लिए वो याद थी और राइटर के लिए वो ऐसा याद थी। सो रिमेम्बरिंग द सी हॉलीडे विद अ फॉन्डनेस एज वेल एज द सेंस ऑफ लॉस, बिकॉज दैट टाइम वुड नेवर कम। लेकिन वो टाइम तो कभी आएगा ही नहीं, तो वो उस पल को देख रहे थे कि वो कितना खूबसूरत पल था जो हमने खो दिया, क्योंकि वो चीज़ अभी आ ही नहीं सकती। इन द सेम वे यही पोएट फील करता है उस पास्ट नॉस्टैल्जिक, दैट मीन्स पास्ट इवेंट को, जो हो चुका उस पल को, पास्ट इवेंट को याद करता है कि वो जो उसकी मदर हंसी थी वो अब कभी आ नहीं सकता। द वर्ड्स लेबर्ड एंड ईज आर अपोजिट। इसके अंदर बेटा इस पैराग्राफ में लेबर्ड तो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स के बाद कुछ मिलता है आपको, और ईज बहुत आसानी से, तो ये दोनों अपोजिट हैं। ओके, हालांकि दोनों एक ही चीज़ कह रहे हैं कि बहुत आसानी से उन्होंने जो चीज़ें खो दी। तो स्टैंजा 4 देखो अब। नाउ शी हैड बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंसेस। देखो बेटा इसके अंदर साइलेंस और साइलेंसेस 2 टाइम्स यूज है। ये एलिट्रेशन वर्ड है। एलिट्रेशन का मीनिंग होता है जो फर्स्ट लेटर सेम रहता है। ठीक है, फर्स्ट लेटर की साउंड सेम रहती है और उसके साथ आपके कंटिन्यूस वर्ड्स चलते रहते हैं। ओके, सो दैट इज एलिट्रेशन। ओके, लाइक आई ईट इंडिया, सो आई रिपीट हो रहा है, सो दैट इज एलिट्रेशन। तो वहाँ पे भी देखो साइलेंस और साइलेंसेस जो है ये एलिट्रेशन है। ठीक है, नाउ शी हैड बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स। देखो अब ये पोएट क्या कह रहा है कि जब वो 12 ईयर्स की थी, जब उसकी मदर ने वो फोटोग्राफ ली थी, अब 12 ईयर्स ही हो गए उसकी मदर की डेथ को। नाउ द पोएट, एक्चुअली पोएट अपने दुख को बता रहा है। ग्रीफ होता है दुख को बेटा, उसके पास वर्ड्स नहीं है कि उसने कितना कुछ खो दिया है। वो याद कर रहा है अपनी मदर को बहुत ज़्यादा। द पोएट इज़ टोटली एब्जॉर्ब्ड इन मेमोरीज ऑफ हर डेड मदर। और पोएट एक तरीके से अपने आप को खो चुका है अपनी डेड मदर की मेमोरीज में, यादों में। द पेनफुल साइलेंस ऑफ दिस सिचुएशन, इसमें सबसे दुख भरी जो चुप्पी है वो क्या है कि पोएट को स्पीचलेस, मतलब वो कुछ भी नहीं कह पाता। वो सिर्फ महसूस कर रहा है, याद कर रहा है, लेकिन वो कह नहीं पा रहा कुछ भी। द पोएट कैन फील द ग्रीफ बट इज अनेबल टू एक्सप्रेस इट थ्रू वर्ड्स। पोएट उस दुख को महसूस कर सकता है लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा। उसके पास कुछ शब्द नहीं है कि वो उसे कैसे एक्सप्रेस करे, कैसे बोले। द साइलेंस कॉज्ड बाय डेथ मेक्स द एटमोसफियर ग्लूमी वेयर नो वन इज एबल टू अटर वर्ड्स। जो साइलेंस है, जो चुप्पी है, ये सबको इतना शांत, इतना ज़्यादा सोचने पे मजबूर करती है। ये बहुत ही इमोशनल मोमेंट दिखाया है जहाँ पे किसी के पास कोई भी शब्द नहीं है, सब के सब सिर्फ यादों में खोए हैं। ठीक है, और कोई भी एक शब्द नहीं बोल पा रहा। सो ये पैराग्राफ उससे रिलेटेड है। ओके,
तो देखो बेटा इसके अंदर पोइटिक डिवाइसेस क्या है यूज़ किए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक एल्यूजन यूज़ किया है, एक इंसिडेंस को यूज़ कैसे किया है, एक फोटोग्राफ को यूज़ किया है कि वो उसकी मदर का पास्ट इवेंट था और जब उसकी मदर उस फोटोग्राफ को देख के हंसी तो वो पल, वो मोमेंट उस ऑथर के लिए एज अ पास्ट मोमेंट था। ठीक है, तो एक फोटो को एक एल्यूजन वर्ड, एल्यूजन डेट मीन्स जो एक इमेजिनरी है, ठीक है, जो कुछ बीता हुआ पल है, जो कुछ याद है, उसे दिखा रहा है। द एलिट्रेशन इसके अंदर देखो साइलेंस, साइलेंस यूज़ किया गया है, टेरिबली ट्रांसलेट यूज़ किया है ना। तो ये जो है आपके एलिट्रेशन वर्ड्स हैं। और स्टूड स्टिल टू स्माइल, देखो एस यूज़ किया हुआ है, तो ये एलिट्रेशन वर्ड्स हैं। एलिट्रेशन अगेन आई एम टेलिंग, जो फर्स्ट लेटर जिनका सेम हो, जिसकी फर्स्ट लेटर की साउंड सेम हो। तो ट्रांसफर्ड एपिट, इसके अंदर ट्रांसफर्ड एपिट क्या है, एक डिस्क्रिप्शन है एक करेक्टर का, एक इवेंट का एक्चुअली डिस्क्रिप्शन है कि उसकी मदर की चाइल्डहुड फोटोग्राफ का ये इवेंट है जो हुआ था। तो ये उसने कहा है कि ह्यूमन बींग्स का तो टेम्परेरी है, लेकिन ट्रांसफर्ड फीट कहा गया है देखो कि ये परमानेंट नहीं है बेटा। जो जैसे उसकी फीट, मदर की फीट जो वॉश आउट हुए थे, है ना, ये सिर्फ टेम्परेरी थे, परमानेंट ह्यूमन लाइफ नहीं है। परमानेंट क्या है, नेचर, ह्यूमन लाइफ नहीं है। ओके यस, इसके अंदर पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुआ है। पर्सोनिफिकेशन क्या यूज़ हुआ है, साइलेंस, जो ह्यूमन क्वालिटी है कि वो हमेशा चुप रह जाता है, कुछ बोल नहीं पाता। तो ये साइलेंस जो है ये पर्सोनिफिकेशन एज ए यूज़ हुआ है, ह्यूमन क्वालिटी के बारे में बताया गया है। ठीक है, कि जब ऑथर है वो स्पीचलेस रह जाता है, उसके पास कोई शब्द नहीं होते, ये उसको कहा गया है। अच्छा, इसके अंदर अपोजिट्स बताओ। एक तो लेबर्ड और ईज बताया गया है, बहुत मेहनत के साथ और बहुत आसानी से। ठीक है, सो ये जो अपोजिट मीनिंग है ये दोनों एक साथ कर रखे हैं, तो इसलिए ऑक्सीमोरन। तो बेटा ये आई विल विद एवरी पोम आई विल डिस्कस दिस ऑल्सो। टुमारो आई विल डिस्कस इट्स क्वेश्चन एंड आंसर. So I hope till here it is clear to you.